The need for training and development. Develop, deliver, and evaluate. A specially designed corporate training and development program aimed to make students abreast with managerial principles and help them sink their teeth into the corporate world. These programs help students to discover their true potential through a series of highly energetic and engaging corporate development activities. Our training programs specially designed to prepare the participants to successfully tackle interviews by understanding the basics of an interview. This training goes into the intricate details to master the art of interview, from body language to communication to everything a person needs to know while going ahead for an interview. The placement cell works to ensure that the recruitment process is a successful one for the students of Disha. It lays high emphasis on pre-placement training, which will prepare students to excel at interviews and recruitment process. Every single day of workshop is designed in a manner to provide maximum benefits to our students. Workshop will explore sessions on career guidance, psychometric analysis, art of self-management, resume writing, communication skills, preparation for GD and PI. Teaching is both an art and science. Teaching is conceptual and intellectual, abstract and concrete, creative and sequential. It's about people but framed through ideas. It's about content, heart, mind, the past and the future. Whatever we can imagine, teaching and learning are both cause and effect. It's time to invite an energetic spirit behind the success of Disha endeavors, who is the real source of inspiration for this national workshop. It's my privilege to invite respected Principal Sir, Disha College, Dr. A.K. Tiwari Sir, to deliver welcome address. Sir, please. So very good morning to all of you. So as you all know, for what we are here, isn't it? Yes. This whole world is evolving. So we can't remain without evolving. So continuous development and continuous evolution is the basic spirit of this program. We have to develop continuously. We have to evolve continuously. Otherwise, we will be dumped. This is what the theory, this is what the ideology for conducting these kind of workshop. As you join college, so lot many thought process and lot many things were there, but you can divide this part, your life before college and after college. So before college, what was there? Just your parent was driving you, your teachers were driving you, your friends were evolved into making you accelerated. That means somewhat you are driven by some other guys. But in the college life, what happens? You have to write your thesis, you have to write your progress report by yourself. And that is how possible. How could you make it possible? For making you aware of all these things, Mr. Anil Dikshit is amongst you, and carefully listen bits of the success in competitive examination and in life both. But my say is that what kind of delivery coming from this side and what kind of receptor you are, all depends. As we can create some interface between institute, industry, between you and us, so that interface will work how? When you will be open-minded and you will be curious and you will be learner. So that kind of process with full of your energy and notes, if you are ready with, then only the success will come around you. If somebody is motivating you and that motivation is for 1 hour, 2 hours, and otherwise I am not at all ready to motivate. If this theory is running with you, then nothing can help you out. So my say is that be open-minded and be progressive. And if you want to run your own business, even then this workshop is very useful for you. So learn with full of your heart and try to gain what exactly possible from your side with your zeal and eagerness.
So lot many sessions will come, lot many guys will come from Raipur, out of Raipur. So they will give you some tips. So you have to avail all these things. But one more thing, in Sanskrit one slok is there, श्रद्धावान लभते ज्ञानम. अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं मिल सकता. That means a serious devotion towards knowing the things. Otherwise it is very impossible for you to get the knowledge. Whether it is the knowledge of this mortal world or the knowledge of that immortal world. In both the worlds, devotion is knowledge. Devotion is the basic source of knowledge. If you are devoting seriously, then only you can go ahead. Otherwise, very difficult. So, enjoy the study. That is very important. But don't lose your seriousness. That is again very important. So, with your seriousness, and I hope that you all are very serious and ambassador of Disha College and running with the flag of Disha College for last 20 years. And really, I am proud of you all. So, you maintain your zeal, eagerness and learning aptitude and get the max to max possible. Thank you. Thank you very much. Hello. Thank you so much, sir, for your sweet and well-lit words of welcome. We extend our sincere thanks to all invited guests who have spent their valuable time to be a part of inaugural ceremony. Here we pray and hope that the entire workshop will be the source of development to all participants and be a grand success. Career decision is one of the most crucial decisions of the life that we made. We should be very careful while choosing any career option. It should be a matter of choice, as I told you earlier, not a matter of chance. Our first session is dedicated towards the basic issue of career guidance. Let I have the privilege to introduce our today's speaker, Dr. Anil Dikshit sir, Assistant Director Patel Tutorials. His father was in Railway Police. Because of frequent transfers, he did his schooling from various cities. Mr. Dikshit completed his graduation in BSc Software stream with gold medal. From there on, he shifted his focus towards civil services and became an UPSC and CGPSC aspirant. It was his sheer hard work because of which he qualified for CAPF in 2009-2010 and reached to the interview stage of UPSC in 2012. He also gave his services in Railway Police 2005 to 2014, Crime Branch, and as a prosecution officer. Currently, he is one of the director of Patel Tutorials and also famous as motivational speaker too amongst youth and students. He is also one of the renowned teacher of Indian polity, economics and environment for civil services aspirants and also own expertise in these subjects. Days are expensive. When you spend a day, you have one less day to spend. So make sure you spend each one wisely. With these words, I request sir to start the session. Sir, please. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सबसे पहले तो मैं ढेर सारा शुक्रिया कहना चाहूंगा प्रिंसिपल सर को कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आपके बीच में आ सके और आपको कुछ बता सके. बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं अभी तक, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आपका थीम है, थोड़ा सा बिलीव करते हैं माइथोलॉजी पर, धर्म वगैरह पर बिलीव करते हैं क्या? हाँ, तो आपकी जो ये पूरी वर्कशॉप हो रही है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर. मैं एक छोटी सी बात से फिर शुरुआत करना चाहूंगा अपनी, कि जो रामायण लिखा गया है, रामायण में अंत में जब रावण का अंत हो जाता है और वो अपनी मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, तो राम जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि जा कुछ सीख ले, थोड़ा सा रावण से कुछ सीख ले. बोल तो लक्ष्मण जी बोलते हैं भैया मुझे क्या जरूरत है सीखने की, मेरे पास तो आप है.
बोले नहीं, रावण परम ज्ञानी था, तू जा कुछ सीख ले। और लक्ष्मण जी आकर के रावण के सिर के पास खड़े हो जाते हैं, तो रावण कुछ नहीं बोलता। तो राम जी उसको बोलते हैं कि नहीं, जा पैर के पास खड़े हो, क्योंकि तुझे जब कुछ सीखना है तो पैर के पास तेरे को खड़ा होना पड़ेगा। और उसके बाद वो पैर के पास जाते हैं और रावण जी उनको तमाम शिक्षाएं देते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे लाइफ में ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है, प्रशिक्षण का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए जब भी आपको प्रशिक्षण मिले तो आपको उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, नोट करना चाहिए और उसको जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहिए। मैं अभी प्रिंसिपल सर के साथ बैठा हुआ था, तो वहां पर भी यही मैंने चर्चा की कि मैं अभी लास्ट प्रीवियस ईयर हम लोग DOPT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड ट्रेनिंग जो है उसने इनवाइट किया एक ट्रेनिंग के लिए, मतलब करियर काउंसलिंग के लिए। तो जब हम वहां पर करियर काउंसलिंग के लिए गए तो ऑल इंडिया से लगभग 1000 लोग थे, पर छत्तीसगढ़ से एक भी नहीं था। और छत्तीसगढ़ से होने के कारण मुझे ये बहुत बुरा लगा कि अरे यार, छत्तीसगढ़ से एक भी नहीं है वहां पर। तो एक बात समझ में आई, फिर हमने जब चारों ओर सर्वे करना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों है कि ऑल इंडिया कंपटीशन में जाकर के छत्तीसगढ़ के लोगों का बहुत ज्यादा रुझान कम क्यों है, या जो परसेंटेज है वो कम क्यों है इन्वॉल्वमेंट का। तो पता चला कि इन्वॉल्वमेंट का परसेंटेज कम इसलिए क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं है अपने करियर को लेकर के, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने तय किया कि हमारे संस्थान की तरफ से, पटेल ट्यूटोरियल्स की तरफ से, कि हम कोशिश करेंगे कि हम उन बच्चों के बीच में जाएं और उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें बताएं या उनसे पूछें, उनसे जाने कि वो कैसा करियर चाहते हैं, किस प्रकार का करियर आपको चाहिए, और जिस प्रकार का करियर आपको चाहिए उस प्रकार के करियर के लिए हम गाइड करें। देखिए, हम एक सिविल सर्विसेज से, सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, लेकिन केवल कंपटीशन ही लाइफ नहीं है, केवल कंपटीशन की तैयारी करना ही लाइफ नहीं है। जीवन में करियर के ढेर सारे ऑप्शन हो सकते हैं। हम जब करियर चूज करने जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या और विडंबना तो यह है हमारे देश में कि जिस समय हमें सब्जेक्ट चूज करना होता है अपने करियर के लिए, जहां से हमारे करियर एक्चुअली बिल्डअप होना शुरू होता है, उस समय हमें पता नहीं होता, हमें जानकारी नहीं होती, एहसास ही नहीं होता है ना, पता ही नहीं होता कि कौन सा सब्जेक्ट लेने से क्या करियर बनेगा। और जब तक जानकारी होती है, चॉइसेस जो है ओवर हो चुकी है, तो फिर आपको समझौता करना पड़ता है। आफ्टर ग्रेजुएशन आपको समझौता ना करना पड़े, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किस एरिया में जाना चाहते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन आपको समझौता ना करना पड़े, इसके लिए हम आपके पास चल कर गए हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपको करियर का चुनाव करना है अपने लिए। समझ रहे मेरी बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जिस समय तैयारी किया करते थे उस समय इंटरनेट इतना वो नहीं था, इंफॉर्मेशन इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे, कुछ बताने वाले लोग नहीं थे कि हमें किस तरीके से करियर का चुनाव करना चाहिए। तो हमारे जमाने में लोग ग्रेजुएट होने के बाद भी 2-3 साल घूमने के बाद सोचते थे कि चलो अब ये नौकरी करते हैं, वो नौकरी करते हैं, और अंत में उनको कुछ मिलता नहीं। लेकिन आज आप देखेंगे कि लोग इतने अवेयर हो चुके हैं। हम अगर अपने क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर जो हम जाते हैं तो देखते हैं कि लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि उन्हें क्लास 10th से पता है कि उनको क्या करना है। हमें तो 10th में होश आवाज भी नहीं रहता है क्या? कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जो अपनी इच्छा से विषय लिए? दबाव में नहीं हो बेटा, आप जिसको इच्छा बोल रहे हो ना, वो आपको पता नहीं था उस समय क्या लेना था। किस आधार पर हमने विकल्प का चुनाव किया? देखो कैसे हम सब्जेक्ट को चुनते हैं 10th के बाद में, किस तरीके से हम सब्जेक्ट का चयन करते हैं। अच्छे परसेंटेज आ गए तो मैथ्स ले लिए, सोसाइटी बोलती है मैथ साइंस वाले अच्छे होते तो वो ले लो, ठीक। कुछ लोगों ने नहीं यार, हमसे उतनी पढ़ाई नहीं होती तो हम आर्ट्स ले लिए हैं, या हमको बस
सेठगिरी करनी है, साहूगिरी करनी है, तो हम बस जा करके कॉमर्स ले लिए। मैक्सिमम लोगों की थॉट यही होती है। अगर आप उसमें नहीं है तो आप एक्सेप्शनल हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आपने बहुत सोच करके लिया है कि नहीं। आपने जब मैथ्स लिया होगा तो आपने मैथ्स या साइंस का सब्जेक्ट जब ऑप्ट किया होगा तो आपका उद्देश्य ग्रेजुएशन करना नहीं होगा। आपके भी सपने वही होंगे कि मुझे IITian बनना है, IIT में जाना है, ऐसे सपने होंगे, तभी तो लिए होंगे। और अगर नहीं गए हो वहां पर, इसका मतलब आपने बस चुन लिया था क्योंकि वो अच्छे सब्जेक्ट है। तो बेसिकली करियर को एक दिशा देना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। जिस एरिया में आपको जाना है, जिस सोच के साथ आपको जाना है, जो आप लाइफ में करना चाहते हैं वही करें। जैसे मोटिवेशनल सेशंस की जब बात होती है, मोटिवेशन देने की, तो मैं आपको यहां पर कोई मोटिवेशन देने नहीं आया। मतलब मैं नहीं चाहता कि आपको मैं मोटिवेशन दे करके चला जाऊं और 5 मिनट बस आप काम करें और गुब्बारे की तरह फूले रहे, उसके बाद से पूरा निकल जाए। आप एक बात बताएं कि आपको अगर फेसबुक पे बैठना है तो किसी के मोटिवेशन की जरूरत है क्या? नहीं है। व्हाट्सएप चलाने में किसी की मोटिवेशन की जरूरत है क्या? नहीं है। आपके दोस्तों के साथ घूमना फिरना है तो किसी मोटिवेशन की जरूरत है क्या? नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका इंटरेस्ट है। तो जब आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड में होते हैं ना, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपको किसी प्रकार के मोटिवेशन की जरूरत नहीं। तो कोशिश यह करनी है कि आपको करियर का चुनाव करना है, और करियर का चुनाव ऐसा करना है जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊं और उस दिशा में आगे बढ़ाऊं जिस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप क्या क्या जानते हैं, आप क्या सोचते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपको क्या करना है। माइक थोड़ा सा बच्चों बताएं बेटा, आप किस तरीके का करियर चूज करना चाहते हैं, बोले, फिर उस हिसाब से हम बताते हैं। अरे बोलो। Sir, after BBA, I want to pursue MBA, and for that, I'm preparing for CAT exam. Okay. MBA. And then after MBA? After MBA, any corporate job? Corporate job. Good. Anybody else? सर बिजनेस सर, प्राइवेट बिजनेस। प्रश्न प्राइवेट बिजनेस किस सेक्टर में? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर? अच्छा, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? बिल्डिंग सर। बिल्डिंग्स। गुड। इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर मतलब। ठीक। और Hello sir, sir my name is Prabhat and I want to be a professor of economics. So I have decided that after BCom I will do MCom or after that I will do PhD from economics. गुड। Thank you sir. अच्छा, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं? बस, और बाकी नहीं जाना चाहते? क्यों? अच्छा, इफ आई आस्क कि जैसे उन्होंने बताया कि आई वांट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्टर, व्हाट यू वांट टू अचीव बिकमिंग अ कॉन्ट्रैक्टर? क्या करना चाहते हो अचीव करके? क्या क्या करेंगे आप? सर कॉन्ट्रैक्टर सर। तो क्यों? वाई? सर बिजनेस सर। सर प्रॉफिट है ना सर। मनी, मेकिंग मनी। सर आई नो सर, मेकिंग मनी, बट सर एक अचीवमेंट रहता है ना सर कि मॉल्स एंड अच्छा, ये मैंने बनाया है। नहीं, आई नो सर, बट कुछ नया करना चाहता हूँ सर, कुछ अलग। वेरी गुड। गुड। थैंक यू सर। नहीं, ठीक है, सबके अपनी अपनी सोच होती है। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? कोई सिविल सर्विसेज की कौन कौन तैयारी करना चाहते हैं?
बोलेंगे? Sir, after graduation, I want to prepare for civil services and become an IPS officer because that is my dream since I was a kid. Because whenever I see that uniform, I literally get goosebumps, and I want that on me with that stars. वेरी गुड. ठीक, बैठिए. देखिए, करियर काउंसलिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है. करियर कैसे ऑप्ट करना चाहिए? जैसे किसी ने कह दिया हमें, भाई लोग जज्बाती हो जाते हैं करियर ऑप्ट करने के दौरान. बहुत जज्बाती हो जाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है. करियर ऑप्ट करने के दौरान जब भी आप करियर ऑप्ट करें तो आपको सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी और एबिलिटी को चेक करना चाहिए कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं उसके लिए. अब आप ये सोचेंगे कि उस एलिजिबिलिटी या एबिलिटी को हम कैसे जानेंगे कि हम उस चीज के काबिल हैं कि नहीं. तो वहां पर दो चीज आती है, एक है कंपटीशन और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन. कंपटीशन और कॉन्सेंट्रेशन को चेक करके आप ये तय कर सकते हैं कि आपके लिए बेहतर करियर कौन सा होगा. जहां पर कंपटीशन कम है वो आपके लिए करियर अच्छा हो सकता है. एक जहां पर कंपटीशन कैसे कम है, जैसे उन्होंने बिल्डिंग के लिए कहा, लेकिन बदलते परिवेश में आज कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहां पर कंपटीशन कम हो. कंपटीशन हाई है. तो आप जिस भी फील्ड को चुनना चाहते हैं तो या तो वहां पर कंपटीशन के आधार पर उसको चूज कर सकते हैं या फिर आप अपने कंसंट्रेशन के बेस पर उसको चूज कर सकते हैं. अगर आप कंसंट्रेट कर पाते हैं जिस भी फील्ड में जा रहे हैं वहां पर आपको हाई कंसंट्रेशन करना है. अगर आप कंसंट्रेट कर पाते हैं तो ही आप क्या कर पाएंगे, उस चीज को डिफीट कर पाएंगे, उस चीज को जीत पाएंगे और तभी वहां पर आप सिलेक्शन ले पाएंगे. तो करियर को तय करने के लिए कंपटीशन, कंसंट्रेशन इज वेरी एसेंशियल थिंग. दोनों आपके पास होना बहुत जरूरी है. और मैं तो ये कहता हूं कि कंपटीशन को छोड़ करके अगर आप केवल अपने कंसंट्रेशन पर वर्कआउट करने लगेंगे तो यू विल अचीव मोर. अच्छा, एक बात और जानते हैं मैडम, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे बिल्डर बनना है, कॉन्ट्रैक्टर बनना है, इन्होंने कहा कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जितनी भी जीवित चीजें हैं ना, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उसमें केवल इंसान ही एक ऐसा है जो उतना नहीं कर पाता जितना उस पर करने की क्षमता होती है. केवल इंसान ही है जो अपने जीवन में मैक्सिमम को कभी अचीव नहीं कर पाता या कंप्लीट अचीवमेंट नहीं पा पाता. इंसान को छोड़ करके बाकी सब पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े जितने भी आप देखेंगे वो अपने मैक्सिमम लाइफ को अटेन करते हैं. जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक पेड़ कितना लंबा हो सकता है, तो याद रखें एक पेड़ उतना लंबा हो सकता है जितना उसकी हद है, जितना एक पेड़ की लंबाई तय है. लेकिन हम जीवन में कभी भी, इंसान जो है कभी भी अपने हाईएस्ट पीक को कभी अचीव नहीं कर पाता. तो जीवन में हमें अगर इंसान का जीवन मिला तो हाईएस्ट पीक को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए. केवल ये नहीं देख करके कि सामने वाला 10 रुपए कमा रहा और मैं 50 रुपए कमा रहा हूं तो मैंने मैक्सिमम अचीवमेंट पा लिया. ये नहीं है लाइफ. मैक्सिमम अचीवमेंट ये है कि आपके अंदर अगर 1000 रुपए कमाने की क्षमता है तो आप 1000 रुपए कमाएं. इस हिसाब से आपको पीक पर जाना चाहिए. जिस भी क्षेत्र में आप जाएं पीक पर जाना चाहिए. याद रखें कि हर चीज जीवन में फोकस से मिलती है और फोकस होने के पहले डिफोकस होना बहुत जरूरी है ना. टू गेट अटैच्ड विथ समथिंग यू नीड टू डी अटैच्ड फर्स्ट. अगर आप किसी एक चीज से अटैच होना चाहते हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज में कुछ करना चाहते हैं तो बाकी चीजों से आपको डी अटैच होना पड़ेगा. इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर, इंडिया में आपका नाम चले, तो आपको बाकी तमाम चीजें छोड़नी पड़ेंगी और जो करते हो उसमें 100% घुस जाओ. फिर वही करो, फिर कुछ भी मत सोचो. मेरी बात समझ पा रहे हैं?
तो इस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीरो से हम शुरू हुए हैं, लेकिन पीक तक जाने की पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए, पीक तक पहुंचनी चाहिए। और हम जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें ऐसा करें, इतना बेहतर करें कि हमारे जैसा कोई दूसरा हो ही ना सके। लेकिन मैं कुछ आपको हाइपोथेटिकल बातें तो नहीं, लेकिन जो एक समाज और जिस समाज में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, उसमें जब हम एक करियर को चुनने जाते हैं तो हमारे सामने बातें क्या क्या आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीवन में पैसा, बट आप ये समझे कि पैसा एक बाई प्रोडक्ट है। बस पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट है प्रॉक्सिमिटी, रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी। आप कुछ ऐसे करियर का चुनाव करें, या आपका लोग जब आप कुछ बनते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी, कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स होते हैं, कितने कॉर्पोरेट्स में भी लोग होंगे, बट जब एक आईएएस, एक आईपीएस, एक डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और एक थानेदार भी आपके सामने से डग्गे में अगर सायरन बजाता हुआ निकल जाए तो आपकी आंखें 2 मिनट के लिए उस पर जम जाती हैं। तो जब भी आप करियर का चुनाव करें तो पहली चीज उसमें आपको यह देखनी चाहिए कि उसमें आपको रेस्पेक्ट कितना है, प्रॉक्सिमिटी कितनी है, एक। दूसरा पावर, और थर्ड पैसा। अगर आप इन 3 चीजों के आधार पर करियर का चुनाव करते हैं और उसके बाद आप ये इवेल्युएट करते हैं कि आप उतना कंसंट्रेशन, उतना इनपुट इसमें दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो जो आप करियर चुनते हैं वही सबसे बेस्ट करियर होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ पूछना चाहते हैं इसमें, या मैं आगे बढ़ाऊं? हाँ, माइक दीजिए। अच्छा, बिफोर ये क्वेश्चन पूछे, मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं। आप सब आजकल स्मार्टफोन यूज करते हो ना? सबके घर में एलईडी तो हो गई, प्लाज्मा भी हो सकता है। टीवी में और यूट्यूब में फर्क ये है, टीवी में आप वो देखते हैं जो टीवी आपको दिखाता है, और यूट्यूब में आप वो देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये सेशन यूट्यूब बने, ना कि टीवी बने। यू आस्क द क्वेश्चन, आई विल आंसर। आपके मन में जितने भी क्वेश्चन है आप पूछें, करियर को लेकर के, जो भी चीजों को लेकर के। समझ रहे हैं? तो शर्माए मत। आप जब तक ये सोचते रहेंगे कि मेरी जगह कोई दूसरा पूछ लेगा, तो वो दूसरा ही आगे बढ़ेगा, आप वहीं बैठे रह जाओ। आपके मन में जो है आप उसको पूछें। मैं जानता हूं कि आप कॉलेज में हैं और आपको लगता होगा कि ये क्या सेमिनार होता है, फलाना होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि आप जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, जब आप कॉलेज के गेट से बाहर जाएंगे और जब आपको रियल दुनिया दिखाई देगी ना, तब आपको यही सेमिनार और यही चीजें आपको हेल्प करेंगी जीवन में आगे बढ़ने। समझ रहे मेरी बात को? जी पूछिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन मेरे पास। नंबर 1 इज कि प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में कौन सा जॉब बेटर होता है? गवर्नमेंट जॉब मेरे को पता है कि गवर्नमेंट जॉब में पावर है, रिस्पेक्ट है, जैसा बोले प्रॉक्सिमिटी है, कि आप कोई भी एक आईपीएस जा रहा है, वैसे तो आईपीएस दिखते नहीं है रोड पे, बहुत ही रेयर है, लेकिन जब भी वो जाते हैं उनके कंधे पे एम्बलम और स्टार्स होते हैं, तो बात ही एक अलग होती है यूनिफॉर्म की। तो वो तो उसकी बात अलग है, लेकिन उनकी लाइफ कैसी होती है? ट्रांसफर्स इतने सारे, इंसान जो भी कुछ भी करता है ताकि वो एक सुटेबल लाइफ जी सके, लेकिन लाइफ में कंफर्ट, मतलब ये सब भी होना चाहिए कि मेरा फैमिली भी है, बहुत सी चीजें। तो ये सबका कंपैरिजन चाहता हूँ कि ये तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में। और व्हाट अबाउट कि अगर कोई बंदा पूरे दिल से तैयारी कर रहा है, उसके पास पोटेंशियल भी है, कि आपने कहा कि उसने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहा है, अपने पूरा सब कुछ लगा दिया, और उसके बाद भी वो एट द एंड पूरे अपने करियर के बाद में कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने के बाद में लास्ट तक गया अपनी एज लिमिट तक, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाया, तो फिर उसके बाद में फिर वो अपनी लाइफ को कैसे टेक ओवर करे, कैसे वो लाइवलीहुड को अर्न करे? गुड। इनके क्वेश्चन को मैं 1 बाय 1 आंसर करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर प्राइवेट और पब्लिक, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब इन्होंने कहा, उसमें बेस्ट कौन होता है? मैं आपको बताऊं बेटा, हर वो चीज बेस्ट होता है जो आपके इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है।
Don't choose your career by chance, choose your career by choice. So make your own choice. तो करियर कभी बाय चांस नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी बाय चॉइस. तो पब्लिक और गवर्नमेंट का कोई इसमें जो कंपैरिजन है वो नहीं है. दोनों के अपने प्रॉस है, दोनों के अपने कॉन्स है. जब हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो उसमें एक हमें एक सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी दिखाई देती है कि हां इतना पैसा तो हमको हर महीने मिलता रहेगा, इतने साल तक मिलते रहेगा. जब आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो वहां पर इन चीजों की सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन हां यह है कि जितना मैं कमाऊंगा उससे उतना मेहनत करूंगा, उतना कमाऊंगा और उसको इतना स्टोर करके रख सकता हूं तो मैं जीवन भर खाता रहूंगा. तो दोनों के अपने प्रॉस है, दोनों के अपने कॉन्स है. इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर. कुछ लोग होते हैं कि उनको बहुत इजी लाइफस्टाइल चाहिए, साधारण सा जीवन चाहिए. भाई 11 to 5 की नौकरी हो, आराम से सुबह सो करके उठे, शाम को घर में बच्चों के साथ अपना जीवन बिताएं, सैटरडे संडे ऑफ हो, है ना, पैसे आए, पेमेंट आए, सैलरी आए, परिवार के साथ मूवी देखें, इधर उधर घूमें, एंजॉय करें, शादी समारोह में ऐसे हो. कुछ लोग एडवेंचरस होते हैं, है ना, कि उनको हर कदम पर चाहिए कि मुझे एक सोसाइटी में एक फुटेज मिले, है ना, सोसाइटी में मेरी एक रिस्पेक्ट हो, मुझे लोग जाने. तो ये जिसके अंदर भूख होगी डेफिनेटली श्योरली वो जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाए. और अगर आप प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं और बहुत अच्छा एफर्ट डालते हैं तो आप उस पीक तक भी पहुंच सकते हैं. तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, है ना. डोंट लीव इट ऑन चांस कि नहीं आज मुझे किसी ने समझा दिया कि गवर्नमेंट जॉब इज बेटर तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाए. ऐसा नहीं है. मैं सिविल सर्विसेज, हमारी संस्थान सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिविल सर्विसेज इज बेस्ट, बस सिविल सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम ऑल द ऑप्शंस इज अ बेटर ऑप्शन. ठीक है, बट ये बेटर बेस्ट है कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन यू फर्स्ट. मेरा एक था लास्ट क्वेश्चन कि अगर कोई इंसान अपना जैसे मैक्सिमम देने के बाद भी अगर सपोज मैं समझ गया, देयर इज अ कॉन्सिक्वेंसेस. जी बैठिए, थैंक यू. पहली बात मैं आपको बताऊं बेटा अपने जीवन में कि जैसे हमने टारगेट सेट किया ना कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं एक साल में, तो टारगेट अगर आप बोलते नहीं नहीं मेरे को नहीं कमाना सर, 1 करोड़ मेरा क्या, मैं तो 1 लाख में भी काम हो जाएगा. जब आप टारगेट सेट करते हो ना, मैं जो आपको कह रहा हूं कि यू मस्ट सेट योर टारगेट, आप अपने टारगेट को सेट करें. टारगेट सेट करना मतलब वो 1 करोड़ कमा लेना मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप टारगेट सेट कर लो, आप आईएएस बन ही जाओ, आप आईपीएस बन ही जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं. लेकिन उस मैक्सिमम को अचीव करने में जो आप प्रोडक्ट बन जाएंगे ना, जो आपका व्यक्तित्व जो निखर जाएगा ना, जो आप इंसान बन जाएंगे ना, वो उस टारगेट से भी कहीं बड़ा होगा. वो तो बाई प्रोडक्ट हो तो आपको मिलेगा. आई वॉज ऑलरेडी इन जॉब, तो हम सब जॉब में थे. देयर वॉज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा मनी, किसी भी चीज की जरूरत भी नहीं थी. बट समथिंग हर्ट में, कुछ चीजें मुझे हर्ट हुई कि यार नहीं यार, मैं जो लाइफ में बनना चाहिए, या मुझसे कम योग्यता का व्यक्ति, या हो सकता है मुझसे योग्यता में ज्यादा हो तो मेरी भी योग्यता इसके बराबर है, बट मैं उतना अचीव नहीं कर पाया. सो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज. तैयारी किया. तैयारी करने के दौरान जो हम बने, आज 6 से 7 हजार लोगों को हम बनाते हैं और हर साल हमारी संस्थान से टॉपर निकलते हैं. आपके कॉलेज के भी कई स्टूडेंट आकर के पढ़े हुए हैं हमारे यहां. तो टारगेट सेट करना इज नॉट ऑल अबाउट अचीवमेंट. जो ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, आप जो इंसान बनकर के निखरेंगे, उससे आप बाई प्रोडक्ट जो पैसे आप अल्टीमेटली कमा ही लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आएगी. जो दूसरा इसी प्रश्न का जो दूसरा सेगमेंट है कि अगर हम सफल नहीं होते हैं तो क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात, जो व्यक्ति यह सोचता है कि मुझसे होगा कि नहीं, वो आप लिख लें स्टाम्प पेपर पर, आपसे होगा ही नहीं. कभी आप ऐसा मत सोचें कि मुझसे होगा कि नहीं होगा. मैंने यही कहा शुरू में भी कि आपको हासिल करना है, दृढ़ निश्चय करके बस लग जाए उस पर, मुझसे ही होगा. एको हम द्वितीय नास्ति. जब आप
प्रतिस्पर्धा में खड़े हो तो आपके मन में यही आना चाहिए कि अकेला मैं हूं, और जब मैं ही अकेला हूं तो मुझसे ही होगा, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जीवन में आप असफल हो जाएं मेहनत करके, ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताएं बेटा, जीवन में सफल कौन होता है? सफल कौन है? हाँ, एनीवन वांट टू आंसर? सर प्लीज पीछे आप। मेरे हिसाब से जीवन में सफल वो होता है जो अपने काम से खुश रहता है। काइंड ऑफ। अच्छा मैं इजी कर देता हूं, शायद आप उस चीज को नहीं समझ पाए जिस वजह से मैंने पूछा। वो तो बिल्कुल सही है बेटा कि हम जो चाहते हैं अगर हम उस चीज को हासिल कर लें तो हमारे ज्यादा खुश कोई नहीं रहेगा। वही बात इंटरेस्ट वाली बात आ गई। लेकिन हमेशा हम सुनते हैं कि जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, ऐसा हम सुनते हैं ना। मेहनत ना करने वाले सफल होते हैं भी, कहीं ऐसा सुने हो? तो कौन सफल होता है? अरे बोलो, बस यूथ की आवाज इतनी है, इतनी सुस्त है। देखो 650 किलोमीटर सफर करके मैं आ रहा हूं ऑन रोड और डायरेक्ट आपके कॉलेज में उतर रहा हूं। मतलब कल रात के 3 घंटे सोए हुए कंटिन्यू जर्नी करके आ रहा हूं। हमारे सीओ साहब बोले सर आप आएंगे नहीं तो बनेगा नहीं। तो मेरी आवाज इतनी सुस्त नहीं, तो आप तो रात भर सो करके ही आए होगे हैं? और आप मुझसे तो युवा ही हो ना भाई, कि नहीं हो? तो आपने हमेशा यह सुना होगा कि मेहनत करने वाले सफल होते हैं, ऐसा है ना? मैं कहता हूं कि यह गलत है। मेहनत करने वाले कभी सफल नहीं। हाँ बस बेटा, ये आप बहुत सुनी सुनाई बातें करते हो, है ना? हार्ड वर्क डजंट ब्रॉट द सक्सेस, इट ब्रॉट बाय स्मार्ट वर्क। यही आप सुनते रहते हो, तो आप वही बोल रहे हो, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं इसमें बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा बेटा, आप जीवन में कोई भी फील्ड तय कर लो और इसको आप लिख करके रख लेना अपने जीवन में कि मेहनत करने वाले सफल नहीं होते बेटा। सफल वो होते हैं जो नियमित मेहनत करते हैं। कंटिन्यूअस एफर्ट कैन मेक यू सक्सेस। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें, अगर आप नियमित मेहनत करते हैं ना, कभी आप सफल हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे इसको मैं एग्जांपल से भी आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप जिम जाते हैं और आप जिम गया, बहुत जबरदस्त मेहनत किए, 2-4 दिन एकदम तबीयत से मेहनत कर दी और चौथे दिन हॉस्पिटल में लेकर गए। उसके बाद 5-6 दिन फिर नहीं गए, फिर 1-2 दिन गए, तो उससे आपका शरीर बनेगा क्या? बशर्ते कि आप भले ही आधा घंटा दें, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस देते रहेंगे, इट विल टेक टाइम, बट समय आएगा और आपका शरीर बन जाएगा। तो सफल होने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है बेटा, नियमित मेहनत करने की जरूरत है। आप जीवन में जब भी ये चाहते हैं, जब भी कोई करियर ऑप्ट करते हैं कि मुझे ये चीज करना है, तो आप उस दिन से ये ठान लें कि अब से आपको नियमित मेहनत करना है, कंटिन्यूअस एफर्ट करना है। जब आप नियमित मेहनत करेंगे, केवल तभी आप सफल हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब आप नियमित मेहनत करेंगे, तो वो चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब्स हो, आप कहीं पर भी असफल नहीं होंगे। सब कॉलेज में पढ़ते हैं ना बेटा, बुक पढ़ने आती है? बुक कैसे पढ़ते हैं? बुक उठाए और रीडिंग मारना और मात्रा वात्रा जोड़ करके ऐसे ही पढ़ते हैं बुक? हाँ, कैसे पढ़ते हैं? पढ़े हो? बुक पढ़ना सीखे हो? 90% आबादी को किताब पढ़ना भी नहीं आता बेटा। बुक को उठा करके उसके एक एक लाइन को पढ़ते जाना, ये पढ़ना नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा पढ़ने का तरीका क्या होता है। आप हमेशा सुनते होंगे कि बड़े बड़े लोग जो हैं बड़े बड़े नॉवेल्स पढ़ते हैं, है ना? पढ़ते कि नहीं? सुनो कि नहीं सुनो?
तो आप अगर सफल होना चाहते हैं तो उसका रास्ता में केवल पढ़ाई से होकर गुजरता है, किताबों से, लेकिन उसमें मन नहीं लगता है। एक पन्ना पढ़ोगे तो हाँ मन लगे रहेगा कि फेसबुक में क्या अपडेट हुआ है, स्टेटस क्या कौन डाला है, ऐसा चलता है। तो आदत डालें किताब पढ़ने की, आप हर फील्ड में सक्सेस होंगे। और कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर आपने बोला था कि पीक में इंसान पहुंचता है, लेकिन सर इंसान को पता कैसे चलेगा कि वो उसकी हाईएस्ट पीक है? लाइक जो पेड़ रहता है उसकी भी एक हद रहती है कि वो सबसे ऊपर उठ चुका है, इसके ऊपर मैं नहीं उठूंगा, बट एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो मेरी हाईएस्ट पीक है? गुड गुड, बैठिए। बहुत सही क्वेश्चन पूछा। और आपको मैं बता दूं बेटा कि इस पर एक कोटेशन भी वर्क करता है। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो मैंने वही कहा ना शुरू में, हमें अपनी स्ट्रेंथ पहचानने आनी चाहिए कि मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं। वैसे तो हाइपोथेटिकल बातें ये है कि इंसान की कोई सीमाएं ही नहीं होती, हाइपोथेटिकल बातें। बट हम सब जानते हैं, जब आप ग्राउंड में दौड़ने जाते हो, ग्राउंड में आप रनिंग करने जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो है बहुत जल्दी दौड़ जाते हैं, उनको बहुत कम समय लगता है। आप बहुत एफर्ट भी लगा रहे हैं तो भी आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो हमें हमेशा हमारी पीक का अंदाजा मैक्सिमम स्ट्रेंथ से, आपको हमेशा इस चीज को प्रयोग में लाना पड़ेगा कि मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं और उससे मुझे क्या मिल सकता है। तो जैसे आप कितना भी पढ़ रहे हैं, अगर मान लो आप सही दिशा में नहीं पढ़ रहे हैं, या आप अगर किसी दिशा में भी पढ़ रहे हैं, सही दिशा में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि आपने करियर का चुनाव, अपने सब्जेक्ट का चुनाव ही गलत कर लिया। आपको यह सोचना पड़ेगा कि किन चीजों में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। समझ रहे हो? तो अपने पीक को समझने के लिए अपने स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा कि मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, मैं कहां तक जा सकता हूं। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हमेशा चैलेंज करने की कोशिश करो। जितना आप चैलेंज करोगे वो स्ट्रेंथ इनहेंस होती जाएगी, और जहां लगे कि ये इनहेंस नहीं हो सकता अब, वहां वो स्टॉप। मेरी बात समझ रहे हैं? उसके बाद आप अपनी वो जो जगह है उसको खाली करें और नए लोगों को मौका दे दें। आपने एक ऑनलाइन स्टोर है, उसका नाम सुना होगा, अलीबाबा। सुने हो क्या? अलीबाबा। अलीबाबा के फाउंडर कौन थे? जैक मा। बहुत सुने होंगे उनके बारे में। जैक मा के बारे में सुने हो ना? फाउंडर थे, रिटायरमेंट ले लिए, छोड़ दिया अलीबाबा को। जैक मा जो है, अच्छा हमारे यहां टीचर्स डे मनाते हैं ना? मनाते कि नहीं मनाते? चाइना में भी टीचर्स डे मनाते हैं। हमारे यहां राधा कृष्ण जी के जन्म दिवस के अवसर पर, और चाइना में जैक मा के बर्थडे के अवसर पर। जैक मा जो है वो 1994 में यूएस गए घूमने के लिए, यूएस। तो वहां पर उन्होंने कुछ चाइनीज शब्द डाला। जैसे आज आप गूगल देखते हो तो आपने हिंदी डाला तो उसका इंग्लिश आ जाता है ना। तो जैक मा ने वहां पर एक चाइनीज वर्ड डाला, तो पहले चाइनीज स्क्रिप्ट ही नहीं था गूगल के उसमें, तो उन्होंने चाइनीज वर्ड को ही इंग्लिश में लिखा, तो उसका जो एक्चुअल इंग्लिश मीनिंग है वो नहीं आया, ट्रांसलेट होकर के नहीं आया। तो जब उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात किया तो पूछा जब रीजन, तो पता चला कि एक्चुअली चाइना में कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं, चाइना के लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं, इसीलिए चाइना के जो वर्ड है वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड नहीं है, गूगल में नहीं। उनको एक बहुत क्यूरियोसिटी लगी कि इतना बड़ा देश और हमारे देश में इंग्लिश नहीं बोली जाती, गूगल में नहीं है हमारे देश का जो स्क्रिप्ट है। तो उन्होंने तय किया कि मैं अपने देश में लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगा। समझ रहे हैं? और वो आ करके, उनको भी इंग्लिश कैसे आती बताओ, उनको भी तो इंग्लिश नहीं आती थी। तो उन्होंने एक टूरिस्ट गाइड का काम करना शुरू किया। जो चाइना में जो बाहर से जो लोग आते थे, फॉरेन कंट्रीज से, उनके लिए उन्होंने टूरिस्ट गाइड का काम करना शुरू किया, और उनको घुमाते घुमाते वो अंग्रेजी सीखते थे।
1997 में जब उनको अंग्रेजी आने लगी, इंग्लिश आने लगी, तो उन्होंने तय किया कि अब मैं एक टीचर बनूंगा और मैं चाइना में सारे लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगा, और उन्होंने इंग्लिश स्प्रेड की, इसलिए उनके जन्मदिवस के अवसर पर टीचर्स डे मनाया जाता है। तो यहां इसको बताने का उद्देश्य क्या था? उन्होंने अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ को चैलेंज किया। अगर वो भी वहां पर सोच लेते यार, जब देश में इंग्लिश नहीं चलती तो मैं कैसे चलाऊंगा? ऑलवेज चैलेंज योर स्ट्रेंथ, इफ इट वर्क्स गो अहेड, एक और स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करो। इफ इट वोंट, स्टेप डाउन, रुक जाओ वहीं पर, स्टॉप योर सेल्फ, दिस इज योर मैक्सिमम लिमिट, आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? जो उम्र होती है 20 साल से लेकर के 30 साल तक की, जब आप प्रोफेशन में आते हैं तो 20 से 30 साल की उम्र सीखने की होती है, 30 से 45 साल की उम्र करने की होती है, और 45 साल के ऊपर लोगों से करवाने और उनको सिखाने की होती है। तो इस तरीके से आप अपने करियर को चुने कि आप अपना मैक्सिमम जो है अप टू 40 ईयर्स सीख लें और कर लें। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब्स में भी मैक्सिमम एज लिमिट 1 टाइम 40 है, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी में 32। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक, बीच में कुछ पूछा? सर मेरा सवाल ये था कि अपना जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है उसको मतलब कैसे अचीव करें, और क्या बोलते हैं इसका कारण क्या है कि इसको अचीव नहीं कर पाते और क्यों नहीं कर पाते, इसको मैं अच्छे से समझना चाहता हूं मैं। गुड, ठीक। तो अभी तो हम समझे कि पीक को डिसाइड कैसे करें, ये समझे ना अपन कि पीक होता क्या, इसको अपन समझे। अच्छा, किसी को बोरिंग भी लग रहा है क्या? बात कर रहे हो बेटा, बोरिंग लग रहा है? बोरिंग लग रहा है तो आप जा सकते हो छोड़कर क्लास, तो फिर बात क्यों कर रहे हो? हेल्प करेगा बेटा लाइफ में, है ना? लाइफ उतनी इजी नहीं है फेसबुक और व्हाट्सएप के जैसे, ठीक, कि लॉगिन किए और एंटर हो गए और सारी चीजें देखे। लाइफ इज नॉट इजियर लाइक फेसबुक एंड व्हाट्सएप। एक लाइन आपको मैं बता रहा हूं बेटा, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कही थी कि कई बार हमें उन चीजों को भी सुन लेना चाहिए या उन चीजों को भी पढ़ लेना चाहिए जो हम सुनना और पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि कभी ना कभी वो जीवन में काम आता है ना? सो लिसन फर्स्ट, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर बेटा, तब आपको चल करके जीवन में कुछ लोग सुनेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि सेट कैसे करते हैं ना पीक को। अब पीक को आपने सेट कर लिया, सेट कैसे होगा मैंने आपको बताया कि आप अपने इंटरेस्ट के बेस पर आप अपना करियर चूज कीजिए, उसमें आप मैक्सिमम एफर्ट देते चलिए, जिस एक लेवल को पार कर लेते हैं उस लेवल को आप फिर से चैलेंज कीजिए, और जिस चैलेंज को जितने लेवल तक आप कर सकते हो वही आपकी मैक्सिमम लिमिट होगी। मैंने ये भी कहा कि आप कभी भी अपने मैक्सिमम लेवल को बाजू से कंपेयर करके मत देखें। सपोज आपका कोई दोस्त है 60% ले आया और आपने 65%, 70% ला लिया, दैट इज नॉट योर मैक्सिमम लिमिट। तो आपको उससे सेटिस्फाई नहीं होना। अगर आप 80 लाए हैं, चैलेंज करें कि अगली क्लास में उसको 90 कर सकता हूं, चैलेंज करें अगली क्लास में 95 कर सकता हूं, चैलेंज करें 100 कर सकता हूं, लगे कि नहीं यार 95 से आगे अब कुछ हो ही नहीं रहा है, दैट इज योर मैक्सिमम लिमिट, गेट स्टॉप योर सेल्फ। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? मैक्सिमम लिमिट को या अपने जीवन में पीक को हासिल कैसे करें? तो पीक को हासिल करने के लिए एक बहुत सिंपल सा फिनोमिना है बेटा। सबसे पहले तो आपको अपने टारगेट तय करने होंगे अपने लाइफ में कि आप बनना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि जिसके जीवन में कोई गोल नहीं होता उसका जीवन वास्तव में गोल हो जाता है। जिसके जीवन में कोई गोल नहीं होगा ना, लाइक आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हमें क्या है, अभी तो हम ग्रेजुएशन में है, फर्स्ट ईयर में, प्रीवियस में, फाइनल ईयर में है, इसके बाद हम पीजी कर लेंगे, पीजी करने के बाद हम कॉर्पोरेट में चलेंगे। जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। फर्स्ट यू नीड टू सेट योर टारगेट, योर गोल।
और उस गोल को सेट करने के बाद फिर आप उसमें आपको आगे बढ़ना, और वो गोल जो है आपके इंटरेस्ट पर सेट होना चाहिए। और फिर आप जितना कर सकते हो उसमें 100% अपना एफर्ट डालें, जितना आप कर सकते हैं, दिन रात उसी को सोचें, उसी के लिए काम करें। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको काम करने का मन नहीं होगा। तो एक ही बात मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इस लाइन को ही अगर आप जीवन में आजमा लोगे तो आप पीक तक भी पहुंच जाओगे और जीवन में जो चीज करना चाहते हो वो कर लोगे। सफल व्यक्ति के पास किसी भी काम को करने की वजह होती है, और असफल व्यक्ति के पास हर काम को न करने के बहाने होते हैं। तो अपने जीवन में वो वजह ढूंढें जिस वजह से आप अपने लाइफ में पीक में पहुंच सकते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था बेटा कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, गरीब मरना बहुत बड़ा पाप है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। आप में से कई ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे घराने से भी होंगे, मतलब बहुत अच्छा घर कहने का मतलब एलाइट क्लास से भी होंगे। वो आपका नहीं हो, आपके मां बाप का है। फर्स्ट थिंक ऑफ इट। आज आप जो भी चीज रखे हो अपने पास में, वो आपका नहीं हो, आपके मां बाप का है। ट्राई टू गेट अर्न समथिंग। एक दिन में 1 रुपए कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, ट्राई टू गो एंड सी। आप कोशिश करके देखें, नथिंग इज योर्स। आपका क्या है? जन्म मां बाप ने दिया, पैसे मां बाप दे रहे हैं, शिक्षा गुरु दे रहे हैं, अभी आपने किया ही क्या है? तो आपके पास करने की वजह होनी चाहिए कि मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, मुझे वहां तक पहुंचना है। अगर आज आप साइकिल में घूम रहे हो तो कल आपके पास रोल्स रॉयस भी होनी चाहिए। आप ऐसा टारगेट सेट करो, और टारगेट सेट करो, और टारगेट सेट करने के बाद आप आगे बढ़ो। तो काम करने की वजह होनी चाहिए। जब आप जीवन में काम करने की वजह ढूंढ लोगे ना बेटा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो पीक को सेट करना और पीक तक पहुंचने के लिए आपको वजह तलाशना बहुत जरूरी है कि आपके लाइफ में क्या वजह है। अगर आपके पास पैसे नहीं, आप गरीब परिवार से आते हो, तो भी वो गरीबी ही आपकी वजह है उसको दूर करने की। नहीं तो आप जिस लाइफ स्टाइल को जीना चाहते हो, उस लाइफ स्टाइल को ही अपनी वजह बना लो कि मैं ये बनने के लिए तो हर संभव चीज करूंगा। जब तक आप ऐसा नहीं सोचते तब तक आप सफल नहीं हो सकते, और ऐसा सोच करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? और कोई क्वेश्चन? सर आपने कहा कि जैक मा गया था तो आपने इंग्लिश को इसमें चाइना में पूरा एक्सपांड किया, बट सर ऐसा तो कि इंग्लैंड में किसी को चाइनीज नहीं आती, एंड सर ऑस्ट्रेलिया में किसी को चाइनीज नहीं आती, तो वो क्यों नहीं सोचते कि हमको चाइनीज नहीं आती तो हम चाइना जाकर सबको चाइनीज सिखाएं? सर ये जरूरी है कि जो हमसे आगे बढ़ चुका कि हम उसी के जैसा बढ़े, हमको अपने अंदर हम उससे आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? सर जैक मा ने ऐसा तो नहीं सोचा कि हम को ऑस्ट्रेलिया में चाइनीज को लानी है। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहे हो कि हम दूसरे की क्यों सोचे, हम अपनी क्यों ना सोचे? सर जैसे आज भी इंडिया में भी सर सब इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश ऐसा तो नहीं सर हिंदी बोलते हैं, हिंदी को ऑस्ट्रेलियन के पास पहुंचाया जाए, इंग्लैंड के पास पहुंचाया जाए। लोग सर आज भी इंडिया में, छत्तीसगढ़ में बहुत जगह सर चाहते कि हम कहीं जाए तो हम इंग्लिश बोलें। सर वहां पर हम हिंदी बोल के उनको एक्सप्रेस करें, इंप्रेस करें, सर इंग्लिश ही क्यों? बिल्कुल, गो एंड स्टार्ट करना चाहिए। ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा उसके 2 हिस्से हैं, एक जज्बाती हिस्सा है और एक व्यवहारिक हिस्सा है। जज्बाती हिस्सा ये था कि सर चाइना को क्यों नहीं आगे फैलाया, वो उसकी विलिंग थी बेटा, वो उसका करियर था। ही ऑप्टेड कि यार मुझे चाइना को इंग्लिश सिखाना, ठीक। इफ यू वांट टू मेक लर्न हिंदी टू अदर कंट्रीज पीपल, गो एंड स्टार्ट योर जॉब। आपको यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा उसका संघर्ष कितना था और आपको कितना संघर्ष करना है। ये जज्बाती हिस्से का उत्तर था। देन वी ऑल आर फ्री। इसका जो दूसरा हिस्सा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हिस्सा यह था कि सर हम दूसरों के जैसे क्यों सोचे। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं बेटा, लाइफ में आप हमेशा सुनते हैं कि ब्लूप्रिंट को फॉलो करना चाहिए, है ना, बड़ों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, है ना। गांधी जी ने
चलाया, सत्याग्रह चलाया, तो हमें गांधी जी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। मैं इस चीज पर बिलीव नहीं करता बेटा। मेक योर ओन फुटप्रिंट एंड लेट द अदर पीपल फॉलो यू। आपको कभी दूसरों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप अपना खुद का बनाएं और देखें कि कोशिश करें कि लोग आपको फॉलो करें। लेकिन फिर भी जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का होना, जब मैं आपको किसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको बोलूं कि आप जैक मा के जैसे बन जाएं। अगर आपको कोई गांधी जी का उदाहरण दे रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप गांधी जी के जैसे बन जाएं। यहां पर इंपॉर्टेंस इस बात की है कि जिन परिस्थितियों में आपके जीवन में एक गुरु का होना, एक इंस्पिरेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप उस गुरु के जैसे बन जाओ, ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं। और गुरु भी नहीं चाहेगा कि आप उसके जैसे बन जाओ, वरना आप भी टीचिंग करते रह जाओगे। गुरु इसलिए जीवन में इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है ना, तो आप अपने आदर्श को सोचते हो, अपने इंस्पिरेशन को सोचते हो, अपने गुरु को सोचते हो कि अगर ये परिस्थितियां उसके जीवन में आती तो वो कैसे करता। तो बस उस कठिन परिस्थितियों से आपको लड़ने का रास्ता दिखाने वाला काम गुरु करता है। आपका एक इंस्पिरेशनल जो पर्सनालिटी होगा वो करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका उद्देश्य ये नहीं था कि आप जैक मा के जैसे बन जाओ। मैंने कहा ना, लेट स्टार्ट कि आप देखें, आप जब यहां पर बात कर रहे थे, आप जब आपस में बात करते होंगे, आप जब लोगों से इंग्लिश में बात करते हैं, तो इंग्लिश आजकल लैंग्वेज नहीं है, एक स्टेटस बन गया है ना, स्टेटस बन गया। आप बात करना शुरू करो ना हिंदी में, अरे इसको कुछ नहीं आता, देहाती है, बुरा बोलेंगे, है ना। ट्राई टू चेंज द पीपल, कोशिश करो। ये भी एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। भारत सरकार आपको भारत रत्न भी दे सकती है, इसको प्रयास भी करना चाहिए। और कुछ? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास भी 2 सवाल है। पहला तो ये है सर, बाई बर्थ सब कोई सेम होते हैं, सबके पास सेम ब्रेन है, बराबर हाथ पैर है, तो ऐसा क्यों होता है कि सबका पीक पॉइंट डिफरेंट है? सेकंड क्वेश्चन ये है सर, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है आप अपने पीक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और अगर नहीं तो आप अपने आप को आगे कैसे चैलेंज करना चाहेंगे? थैंक यू सर। मैं दूसरे वाले का जवाब पहले देता हूं। नहीं, मैं आज तक अपने पीक पर नहीं पहुंचा हूं, और मुझे जहां पहुंचना है वो आप लोग। मेरी जो लाइफ है, मैं जिस तरीके से बनना चाहता हूं, और मेरे जो लाइफ का डिजायर है कि जो मैं सोचा जीवन में, या जो हमारे जीवन में जो समस्याएं आई, वो आप लोगों के जीवन में वो समस्याएं ना आए। आप लोगों को गाइड करने वाला कोई ना कोई हो। समझो मेरी बात को। मतलब मैं एक टीचर के तौर पर ही इस दुनिया से बाहर जाना चाहता हूं, एक टीचर के तौर पर, और उस टीचर के तौर पर जिसको सब जाने। पैसा बाई प्रोडक्ट है, वो अर्न होता है, वो मिल रहा है, मेरे टारगेट्स अलग है। मैंने कहा ना, मैं आपके बीच में क्यों आया हूं? वी हैव ऑलरेडी 5,000 to 6,000 स्टूडेंट। जब एडमिशन का दौर आता है तो हमें मिनिस्टर से, अलग अलग जगह से फोन आते हैं, लेटर्स आते हैं कि इस बैच में इसको एडमिशन दे दिया जाए। सो आप लोगों को कोचिंग लाना इज नॉट आवर मोटिव ना। आप लोगों को कोचिंग तक लेकर के आना मोटिव नहीं है। मोटिव यह है कि जो हम अपने जीवन में नहीं कर पाए, या जिन चीजों के लिए हमको दर बदर भटकना पड़ा, हम पैसे देकर के हजार रुपए की फीस देकर के मोटिवेशनल लेक्चर्स को अटेंड करने जाते थे, करियर काउंसलिंग को अटेंड करने जाते थे। हम चाहते हैं कि वो जीवन में आपके ना, इसलिए हम आप तक आए। तो मैं उस एरिया में आगे बढ़ रहा हूं, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई गोल। ठीक। और जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था? हाँ, इसका एक आंसर देना चाहता हूं मैं आपको बेटा, कि जो तेजी है ना, स्पीड, वो कार में नहीं होती है, उस कार को चलाने वाले में होती है। कार सबके लिए एक जैसा है, लेकिन उस कार की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है, दैट डिसाइड द स्पीड ऑफ द कार। मेरी बात समझ रहे हैं?
यू आर द ओनली ड्राइवर ऑफ योर करियर. यू मस्ट डिसाइड कि आपको कहां जाना है. मेरी बात समझ रहे हैं? आपको तय करना है कि आपको अपने करियर को किस ओर लेकर के जाना है. जिस स्पीड से आप अपने करियर को लेकर के जाओगे, उसी स्पीड से और उसी तरीके से आपका करियर जो है पीक में पहुंचेगा. इसलिए हर व्यक्ति का पीक भी अलग अलग होता है ना. इट वेरीज पर्सन टू पर्सन. हर व्यक्ति का पीक अलग अलग होगा. समझ नहीं मेरी बात? कुछ और पूछना चाहते हैं? सर, कंपटीशन एग्जाम जो सिविल एग्जाम है, जैसे स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन होता है, एसएससी, सीएससी होता है, तो कोई एसएससी से अगर गया और वो डीएसपी बना, पीएससी से जाते हैं. हाँ, पीएससी. तो पीएससी से जाके कोई डीएसपी बन गया, वो भी पुलिस ऑफिसर है, और उसके ऊपर आईपीएस है जो कि सिविल सर्विस से गया, यूपीएससी से, है ना. तो जो यूपीएससी की जनरल कैटेगरी की लिमिट है वो 32 है. तो मेरा ये क्वेश्चन था कि प्रमोशनल एग्जाम भी तो होते होंगे ना, कि जैसे कि सपोज उनकी एज लिमिट खत्म हो गई, 32 ओवर हो गया जनरल कैटेगरी का जो डीएसपी है, लेकिन वो अगर चाहें कि आईपीएस बनना चाहते हैं तो कुछ मतलब कि वो कैसे डीएसपी से वो आईपीएस कैडर हासिल करें, तो उसके बीच में कोई डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जाम है, उसके बारे में थोड़ा बताइए. जैसे इन्होंने पूछा, पहले तो ठीक ट्रैक पर चल रहा है आपका जो सेशन है, तो बेनिफिशियल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं, एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आई एम वेरी रियलिस्टिक पर्सन. कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से. अगर आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा तो आई विल एंड द सेशन. फर्क पड़ रहा है आपको कुछ? और आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचे ना कि मैं बाहर से कोई गेस्ट लेक्चरर, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. मैं आपसे बस उम्र में बड़ा हूं, अनुभव में बड़ा हूं, तो मैं अपने आप साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करने आया हूं, बस, नथिंग एल्स. ठीक. और बस मैं यही चाहता हूं कि अगर मेरी वजह से अगर किसी एक के भी जीवन में परिवर्तन आ जाए तो ये बहुत बड़ी चीज होगी. मेरे एक बहुत फेवरेट जो राइटर है, जिनको बुकर अवार्ड भी मिला था 2003 का, स्टीफन हॉकिंस, वो लिखते हैं कि द ओनली डिसेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज मेंटल डिसेबिलिटी. एक इंसान की जो सबसे बड़ी विकलांगता है वो मानसिक विकलांगता है कि यार ये मुझसे नहीं हो सकता, है ना. तो बस मैं यही चाहता हूं कि आपके मन में अगर किसी भी प्रकार की मेंटल डिसेबिलिटी है तो वो दूर हो जाए. जो इंपॉर्टेंट प्रश्न इन्होंने पूछा है कि डीएसपी आईपीएस बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, सब बन सकते हैं. जब आप पहली बात तो यूपीएससी, पीएससी आप समझ लें थोड़ा सा, कि सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन के एग्जाम बेसिकली अगर देखेंगे, आपको अगर नौकरी में जाना है, तो अगर आपको रेलवे की नौकरी करनी है तो आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो एग्जाम्स लेती है. अगर आपको सेंट्रल लेवल के डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इंस्पेक्टर रैंक की तक की नौकरी चाहिए तो उसके लिए एसएससी है. क्लर्क या इंस्पेक्टर रैंक की नौकरी चाहिए तो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं तो अगर आपको प्यून से लेकर के अगर आपको इंस्पेक्टर रैंक तक जाना है तो उसके लिए व्यापम है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, इंग्लिश में पीईबी बोलते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड. और अगर आप सेंट्रल में सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज कहने का मतलब ऐसी सर्विस जिसमें आप सिविलियन यानी आम लोगों के लिए काम करते हैं, आईएएस, आईपीएस, है ना, आईआरएस, आईएफएस, ये सब सिविल सर्विसेज हैं. स्टेट की सिविल सर्विसेज में आपका डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ये सब आते हैं. तो अगर आप स्टेट में डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, तो आपको पीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा. अगर आप आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा. ठीक. अगर आप क्लर्क से इंस्पेक्टर लेवल तक स्टेट में जाना चाहते हैं तो व्यापम का एग्जाम देना पड़ेगा. अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो आरआरबी का एग्जाम देना पड़ेगा. और व्यापम में अगर सेंट्रल में जाना चाहते हैं तो एसएससी का एग्जाम देना पड़ेगा. जो भी एग्जाम देना हो उसकी तैयारी कमोबेश एक जैसी है, बस एग्जामिनेशन के हिसाब से अप्रोच में चेंजेस आ जाते हैं. आपको हर एग्जाम में जीएस पढ़ना है, जनरल स्टडीज, और आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है. ये हर एग्जाम में यही पूछा जाता है. अगर आप व्यापम दे रहे हैं तो भी आपको मैथ्स, रीजनिंग देना है. जीएस का मतलब होता है इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे. सारे सब्जेक्ट जैसे
आपका इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, साइंस, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ठीक, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ज्योग्राफी वगैरह सारे सब्जेक्ट आपको वहां पर पढ़ने पड़ेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज आपको वहां पर पढ़ने पड़ेंगे। अब जिस आप एग्जाम को अप्रोच कर रहे हैं उस एग्जाम के हिसाब से आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो मिनिमम एज 21 होना चाहिए। यूपीएससी के लिए मैक्सिमम एज 32 होना चाहिए, ओबीसी के लिए 35 और एससी एसटी कैटेगरी से है तो 37 तक यूपीएससी आप दे सकते हैं। अगर आप पीएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं तो 35 तक सब दे सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5 साल एक्सटेंशन जोड़ लें, चाहे आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, तो 40 साल तक दे सकते हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं। और अगर आप व्यापम और रेलवे और एसएससी देखते हैं तो आप 19 से लेकर के 40 तक एग्जाम दे सकते हैं, 19 साल की उम्र से लेकर के 40 साल की उम्र तक। तो ये तो तैयारी का एक खाका हो गया। अब इसमें तैयारी करने के बाद जैसे सिलेक्शन के लिए अगर हम जाते हैं, मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, डीएसपी बन गए सपोज, तो आपको ये डर सता रहा है कि डीएसपी बन गया लेकिन मैं तो आईपीएस बनना चाहता हूं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 8 साल जब आप डीएसपी की नौकरी कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए, और डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। 8 साल के बाद एज अ डीएसपी जब आप सर्विस कर लेते हैं तो आप आईपीएस की परीक्षा डिपार्टमेंटल, ऑल इंडिया के सारे डीएसपी जो होंगे वो देंगे, अलग अलग स्टेट के। अगर आपने काबिलियत है तो आप उस तरीके से हो सकते हैं। ये कंपटीशन हो गया, डिपार्टमेंटल कंपटीशन। एक सर्विस सीनियरिटी के बेसिस पर आपको काम करते करते आप डीएसपी से सीएसपी, सीएसपी से एडिशनल एसपी, एडिशनल एसपी से एसपी, जब आप एडिशनल एसपी से ऊपर पहुंचते तो आप सीनियरिटी के लेवल पर आ जाते हैं। फिर ऑल इंडिया सीनियरिटी देखी जाती है, स्टेट से मंगवाया जाता है, हर राज्य से यूपीएससी मंगवाती है कि आपके यहां कौन सीनियर मोस्ट डीएसपी है। तो स्टेट्स जो होती है, स्टेट की पीएससी फिर आपके नाम को रिकमेंड करेगी कि ये हमारा सीनियर मोस्ट डीएसपी है और इसको प्रमोशन दिया जाना चाहिए। यूपीएससी उस पर क्या लगा देगी, ठप्पा लगा देगी, अपना असर्शन दे देगी और आप आईपीएस हो जाएंगे। तो आईपीएस बनना इज नॉट बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से बन सकते हैं। किसी भी एंट्री लेवल में आप पहले एंटर तो करें, ठीक है। और कुछ? हाँ, सर जैसे कि आपने कहा कि मेंटल डिसेबिलिटी जो रहती है सर, उसको कैसे दूर करें? जैसे कि कोचिंग स्टार्ट करते हैं सर, तो इतना सारा सिलेबस देखते हैं और सर फिर देखते हैं कॉम्पिटिटिव रहता है, इतने सारे बच्चे बैठे हैं कोचिंग में, तो सर एक डिमोटिवेशन लगता है कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो सर वो कैसे रिड्यूस करें? बैठिए, मैं इनके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, और क्योंकि आप रायपुर से हैं तो एक बेहतर एग्जाम्पल भी है अपने पास में, और आप इतने अच्छे डिग्निफाइड, इतने क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा पढ़ रहे हैं। मैं एक बात आपको बताता हूं बेटा कि पहली बात तो आप ये समझ लें कि आप जितने लोग देखते हैं ना, आज जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना बेटा, 90% भीड़ है, केवल 10% वो लोग होंगे जो वास्तव में इसको सुनने के लिए बैठे हैं। तो पहली बात, डोंट अफ्रेड ऑफ क्राउड। भीड़ कभी कुछ नहीं कर सकती, भीड़ कभी सफल होती ही नहीं। सफल कौन होते हैं मालूम है? जो डिटरमाइंड होते हैं, जो फोकस्ड होते हैं, जिनको करना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो पहली बात, भीड़ को देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं कि इतने सारे लोग हैं कैसे होगा। अब इसके सेकंड पॉइंट पर आते हैं अपन कि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, फलाना होता है, ये सब चीज देख करके, या कई बार हमको ये भी लगता है यार हम तो यार छोटे से शहर से आ रहे हैं, है ना, हमसे कैसे होगा। आपके रायपुर शहर के पूर्व कलेक्टर थे श्री ओपी चौधरी जी, नाम तो सुने होंगे आप, और उनके बारे में बहुत पढ़ा भी होगा आपने, सुना भी होगा, देखा भी होगा उनके बारे में। ओपी चौधरी सर जो है, आपको पता ही होगा कि रायगढ़ जिले के छोटे से गांव बायंग से आते हैं और एक सरकारी खपरेल स्कूल में पढ़े, और आप तो इतने फॉर्चुनेट है कि आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एक छोटे से गांव से वो आते हैं और एक दिन अपनी मम्मी के साथ पेंशन लेने के लिए जाते हैं रायगढ़ कलेक्ट्रेट में, और जब वो पेंशन लेने जाते हैं तो वहां पर वो पहली बार कलेक्टर को देखते हैं, एंड ही गेट इन्फ्लुएंस्ड, यार कलेक्टर इतना कुछ कर सकता है। और वो बहुत पुअर फैमिली से भी थे, पिताजी के जाने के बाद मम्मी ही उनका लालन पालन पोषण कर रही थी,
उसके बाद जब वो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो उनको ऑफर होता है गवर्नमेंट जॉब का, कंपनसेशन जॉब का, उनके पिताजी की जगह, और वो डिनाई करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं बनना है, मैं चाहता हूं कि मैं कलेक्टर बनूं। और उस चीज को लेकर के वो अपने सपने को लेकर के वहां तक जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली जाकर के तैयारी करते हैं इतनी कठिन परिस्थितियों में, और छत्तीसगढ़ के पहले आईएएस अधिकारी बनते, फर्स्ट आईएएस ऑफिसर। अगर वो भी अगर ऐसे ही सोचते कि यार मैं इस छोटे से गांव का, इस छोटे से शहर का, मुझे अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ रहा हूं, ऑल इंडिया इतना बड़ा कंपटीशन है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो अगर वो भी सोचते तो शायद हमको छत्तीसगढ़ का पहला आईएएस ऑफिसर नहीं मिलता। और जब तक आप ऐसे सोचते रहेंगे आप कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए मैंने अपनी लाइन ही स्टार्ट की थी कि जब तक आप ये सोचेंगे कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, आप लिख करके रख लें कि आपसे नहीं होगा। जिंदगी में हमारे आसपास हर तमाम तरह के लोग हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जब हम लोग जब पुलिस में थे तो हम लोग को कंपटीशन होता था आर्चरी। आर्चरी सुनते ना आप लोग? क्या होता है आर्चरी? तीरंदाजी, है ना? तो हम लोग तीरंदाजी तो नहीं, फायरिंग जब जाते थे, फायरिंग रेंज पर जब फायर करना होता था, एनुअल फायरिंग रेंज पर जाना पड़ता है हर साल, ताकि भूल मत जाए। ट्रेनिंग में तो होती है, बट उसके बाद भी हर साल जाना पड़ता है फायरिंग रेंज पर, क्योंकि ऐसे चला नहीं सकते, वहीं पर कम से कम चला करके याद रहे सिलेबस जो है अपना, कि कैसे दबता है ट्रिगर जो है। तो हर साल हम लोग को लेकर के जाया जाता था। जो बुनियादी ट्रेनिंग दी जाती है उसमें वो ये है कि जैसे आपका टारगेट जहां पर है, उस टारगेट से थोड़ा ऊपर एम लेना पड़ता है। और एक्चुअल कभी आप, अगर आपको मौका मिला हो, एनसीसी वगैरह में रहे होंगे कभी स्कूल कॉलेज में, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक टिप बना हुआ रहता है, ऐसे एक सीधा नोक बना रहता है। किसी भी गन को आप उठाएंगे तो उस पर एक टिप बना हुआ रहता है। प्लास्टिक का गन लेते होंगे ना, तो उसमें भी बना रहता है। कहीं मेले में नहीं एयर गन वगैरह फायरिंग नहीं की हो क्या, फुग्गा फोड़ने वाला? हाँ, देखो ना, उसमें टिप बना हुआ रहता है। वो हमेशा गन के ऊपर होगा, और कहा जाता है आप उस टिप को लेकर के एम लगाइए। ये टारगेट है आपका, और इसके ऊपर रहेगा वो टिप, क्योंकि जब हम गोली छोड़ेंगे, जब बंदूक से गोली निकलेगी, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगा, वो डाउन आकर एकदम बुल साई लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इससे दो चीजें समझनी चाहिए। टारगेट हमेशा ऊपर होना चाहिए, लाइफ में जो बनना है उससे ऊपर होना चाहिए। जैसे बच्ची ने बोला मैं आईपीएस बनना चाहती हूं, श्योरली अगर ये मेहनत करती थी, आईपीएस अगर नहीं बनी ना, तो या तो सेंट्रल में ही आईआरएस बन जाएगा, और वर्दी की बहुत चाह होगी ना, तो डीएसपी तो बनी जाएगी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर वर्क कर रहा था ना, जो उसको नीचे लेकर के आ रहा था, यही हमारी मानसिक विकलांगता है, और यही हमारे आजू बाजू के नेगेटिव पीपल है। वो लोग हमको खींच करके नीचे लाने का प्रयास करेंगे ही। ये हमारे ऊपर है कि हमारे में इतनी तेजी होनी चाहिए कि उनके नीचे खींचने के पहले हम अपने टारगेट पर पहुंच जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमें वर्कआउट करना चाहिए इसमें। और कुछ पूछना चाहें? ज्यादा लोगों को बोर तो नहीं लग रहा है? हैं? सच्ची बोल देना मेरे को, मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो पता चला कि शर्म से बोल नहीं रहे हो और दिन भर खिंचा गया। सर जैसे कि हम अपना हाईएस्ट पीक पॉइंट को जैसे कि हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, और हासिल नहीं कर पाते तो क्या होता है? जैसे छोड़ना है क्या? तो सुन लो, थोड़ा सा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। किसी के लिए काम कर जाए, आप लोगों के लिए ना सही तो। बेटा, जो हम चाहते हैं, अचीव करना जो चाहते हैं लाइफ में, अगर वो मिल जाता है तो जीवन में सबसे बड़ी चीज सुकून मिलती है। यार मैं आज यहां पर हूं, तो पीक को अचीव करना आपको एक सुकून देगा कि हां, मैं एक एग्जांपल आपको कोट करना चाहता हूं। जैसे रतन टाटा, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम तो सुने होंगे। टाटा नहीं सुने, सोनाटा सुने हो ना, गाड़ी, वो टाटा कंपनी गई है।
टाइटन सुने? तो रतन टाटा ने, आपके रायपुर में शोरूम भी है, रेंज रोवर, जगुआर, सुने? तो रतन टाटा ने क्या किया कि उन्होंने इसको खरीद लिया। और आपको ये पता है ना कि सबसे महंगी कारें हैं, वन ऑफ द सबसे महंगी कारें हैं रोल्स रॉयस के बाद। तो जब उन्होंने जगुआर और रेंज रोवर को खरीदा तो उन्होंने, सबने, पूरी दुनिया ने उनको कहा एक गया, एक खत्म, ये ऐसा निर्णय ले लिया है, आत्मघाती कदम है, ऐसा निर्णय बर्बाद कर देगा टाटा कंपनी को। समझ रहे हो? और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और रतन टाटा जी से पूछा गया कि भाई आपने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों लिया? ये निर्णय क्या आपको नहीं लगता कि ये जीवन में गलत साबित हो जाता है? ये आपका निर्णय गलत है, आपको ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था। और इसलिए भी इस चीज को अप्रूवल मिल रहा था क्योंकि जैसे उन्होंने आपका जगुआर और रेंज रोवर को खरीदा, शेयर मार्केट के जो शेयर्स की जो कीमतें हैं, लगातार पूरा शेयर मार्केट डाउन हो गया। शेयर मार्केट डाउन हो गया, यानी लोग अपने पैसे निकालने लगे टाटा कंपनी से। शेयर मार्केट पूरा, शेयर्स पूरे डाउन हो गए थे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब रतन टाटा से पूछा गया कि आपने ये निर्णय क्यों लिया, आपका निर्णय, क्या आपको नहीं लगता कि आपने गलत निर्णय लिया? तो उन्होंने कहा, और जो कहा वो आपको सुनना चाहिए और आपको ये मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जब निर्णय लेता हूं तो केवल निर्णय लेता हूं, मैं ये नहीं सोचता कि वो सही है या गलत है। मैं निर्णय लेता हूं और उसके बाद उसको सही करने के लिए पूरा भरसक प्रयास करता हूं। और आपको ये बता दूं बेटा, आज रतन टाटा को, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सबसे ज्यादा रिवेन्यू देने वाला रेंज रोवर है, सबसे ज्यादा रिवेन्यू देने। तो निर्णय कभी कोई गलत या सही नहीं होते, निर्णय होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना सही साबित करते हैं। अगर आपने निर्णय लिया है कि मुझे, जैसे उन्होंने कहा मुझे कॉन्ट्रैक्टर बनना है, और आप अगर छत्तीसगढ़ के एक नंबर कॉन्ट्रैक्टर, छत्तीसगढ़ छोड़ो रायपुर के एक नंबर कॉन्ट्रैक्टर बन गए, तो लोग भी आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर बनने का बीड़ा उठाया, घर बनाना तो छोड़ो, अपना ही घर बार बिक गया। मेरी बात समझ रहे हो? यू प्रूव योर क्रिटिक्स राइट, आपने अपने आलोचकों को सही साबित कर दिया। तो निर्णय हमेशा निर्णय होता है, निर्णय सही या गलत नहीं होता। टेक योर डिसीजन एंड ट्राई टू मेक देम राइट। उसको सही करने पर आप पूरा कोशिश करो। समझ रहे हो? तो जब हमको निर्णय लेते हैं और वो सही हो जाता है, हम उसके पीक तक पहुंच जाते हैं, तो हमें जीवन में सुकून मिलेगा कि हमने जो निर्णय लिया वो सही था। और मेरे हिसाब से वो जो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया, जब आप घर में बैठते हो और आपको सुकून लगता है, उससे अच्छा जीवन में कुछ भी नहीं है। तो वो सुकून के पल आपको मिलने चाहिए। और अगर आप जो चाहते थे वो नहीं हासिल कर पाए, लेकिन अगर आपने उतना एफर्ट किया है, तो बोलते हैं ना बेटा, टेक रिस्क इन योर लाइफ, टेक रिस्क इन योर लाइफ। अपने जीवन में आप जोखिम उठाएं। इफ यू वॉन्ट यू कैन गाइड द पीपल, सॉरी, इफ यू वॉन्ट यू कैन लीड द पीपल, एंड इफ यू गॉन रॉन्ग यू कैन गाइड द पीपल। अगर आप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं और वो निर्णय सही हो जाते हैं, आप जीत जाते हैं जोखिम को लेकर के, तो आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो आप लोगों को बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए और किस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? मान लीजिए अगर मैं आईएएस बन गया होता तो आज कहीं का कलेक्टर होता और कहीं पर राज कर रहा होता, शासन कर रहा होता, सेवा कर रहा होता लोगों की। लेकिन अगर आज कलेक्टर नहीं है तो आप जैसे लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो रास्ते हमने देखे हो। ठीक? तो अगर हम ना बने तो कम से कम हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। मैंने कहा ना बेटा, टारगेट को अचीव करना सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। टारगेट को अचीव करने के प्रोसेस में जैसे हम इंसान बन जाते हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझ रहे हो? 100 करोड़ कमाना है तो 100 करोड़ कमाना ये टारगेट है। जरूरी नहीं कि हम 100 करोड़ कमा लें, लेकिन 100 करोड़ को कमाने के प्रोसेस में हम जो इंसान बनेंगे ना, वो आपको दुनिया में एक अलग लेवल पर लेकर के चली जाएगी। पैसे आपके लिए मायने नहीं रखेंगे उसके बाद। तो मिल गया तो बहुत अच्छा, और ना मिला तो उससे भी अच्छा, है ना? पूछिए ना।
तो क्या चीजें अभी से करनी शुरू करनी चाहिए अगर उन्होंने इतना बड़ा एम बनाया है, तो मतलब क्या बेसिक्स उनको जी करना पड़ेगा? जी जी सर, जैसा कि आपने बताया कि आप इस मतलब सबको गाइड करना चाहते हैं, मतलब ये मैं भी बहुत आभारी हूँ आपका कि आज इतनी सारी जब बातें मेरे को पता चली, कई सारे मेरे भी डाउट क्लियर हुए। आप ही की तरह एक सर हैं आईपीएस संदीप चौधरी सर, कश्मीर कैडर में, वो भी स्टूडेंट्स को मतलब सर्विस के साथ साथ टीचिंग भी देते हैं और वहाँ के युवाओं को यूथ को पढ़ाने के लिए ताकि वो सिविल सर्विस में जाएं, ताकि वो टेररिस्ट ना बने, मतलब वो जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब, मतलब एक अच्छा मतलब एक इंडियन सिटीजन बने और सर्वेंट बने, तो वो वैसे गाइड करते हैं। एक सिविल बींग्स एक चैनल है यूट्यूब में, उसमें भी एक सर हैं, वो सागर डॉक्टर, वो पता नहीं नाम, मतलब सागर पता है और आगे सरने मेरे को नहीं पता। तो क्या आपका भी ऐसे कुछ यूट्यूब में कोई चैनल है, जैसे आपने कहा था कि ये चीज एक यूट्यूब होना चाहिए ना कि एक टीवी होना चाहिए, तो मतलब टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब से आप और भी ज्यादा लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो क्या आप अपना चैनल बनाएंगे? मतलब या फिर ये जो बातें हैं कि हाउ टू रीड द बुक, ये बेसिक चीज हमें भी नहीं पता, तो मतलब ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीजें जो आप यूट्यूब में लोगों को बता सकते हैं, फिर आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को और ज्यादा अवेयरनेस होगी और फैलेगी और आपका काम और ज्यादा अच्छा होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन कम सजेशन ज्यादा था। हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है, अप्रोच किया है कि सर आप बनाइए और हम बना देते हैं, बट जानते हैं मेरी फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है इन सब चीजों में। मेरा ये मानना रहा है शुरू से कि कितनी भी टेक्नोलॉजीज आ जाए, नथिंग कैन रिप्लेस चॉक एंड डस्टर। आज मैं जो आकर के आज आपसे मिला और आप अगर इसके बाद अगर आप मेरे को कहीं पर देखेंगे, मेरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, मेरी बातों को तवज्जो देंगे, वरना कितने ऐसे यूट्यूब चैनल में आकर के निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो हाँ, ये एक लेवल अप हो सकता है, डेफिनेटली आई ट्राई टू डू दैट। और हमारे पास तो टीम भी है, हमारे आईटी इंचार्ज हैं हरीश सर हमारे, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा। कुछ एक लेक्चर तो आपको मिल ही जाएंगे उसमें, कुछ पढ़ाते हुए कुछ लेक्चर्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के ऊपर में जो पीएससी में बहुत यूजफुल हैं। कुछ करियर गाइडेंस सेशन भी होंगे, कुछ ऑफिसर्स के साथ भी बैठे हुए हम लोग, ऐसा कुछ मिल जाएगा। बट हाँ, मैंने ऐसा कुछ अभी चालू नहीं किया है, बट पहले आप लोग तक पहुंच जाए, उसके बाद कोशिश करेंगे उसको चालू करने की। पहले मैं जान तो लूं कि जिनसे मैं मिल रहा हूं वो लोग इसको करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। और मैं लिटरली आप लोगों को बताना चाहता हूं बेटा, मैडम ने जैसे बोला कि अभी बताएं कि अभी से आपको क्या करना चाहिए। आप लोग फाइनल ईयर में हैं, मैं एक कोट करके फिर यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा कि जैसे अभी तक की हिस्ट्री में, सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री में बेसिकली बात करें तो सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री में सबसे कम उम्र के जो आईएएस बने वो है दिग्विजय सिंह। वो एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं ना, तो उनको मत सोच लेना, है ना। दूसरा एक लड़का है, महज 21 साल 2 महीने की उम्र में वो आईएएस बने। अभी तक का रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र के आईएएस अधिकारी है। तो जब वो आईएएस बने तो उनसे जब पूछा गया उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में, तो उन्होंने कहा आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट माई गोल कि मुझे आईएएस ही बनना है। और आईएएस बनना जब मेरा तय था तो मैंने उसकी तैयारी जो है 11th 12th से ही शुरू कर दी थी। आप बार बार सुनते होंगे कि जैसे सिविल सर्विसेज की हम तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए, सुनते हैं ना, ऐसा सुने होंगे बहुत सारे लोग के मुंह से। और एनसीईआरटी में क्लास 6 to 12 तक की बुक्स जो है पढ़ने चाहिए। अब एक बात सोचे बेटा, जब आप 6वीं में थे तब तो पढ़े नहीं, 12वीं भी निकल गया अब आपको वापस से वहां से 6 to 12 तक की पढ़ाई करनी है, वापस से। तो ये जो सब्जेक्ट है उन्होंने तैयारी शुरू किया और
अपने 11वीं 12वीं से 11 12 से वो बहुत डिटरमाइंड थे कि नहीं मुझे करना है। ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने, जब वो फर्स्ट ईयर में थे तब उन्होंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर प्रीवियस, और फाइनल ईयर में एक बार और रिपीट किया कोचिंग क्लास को, और फाइनली वो जो है आपका आईएएस अधिकारी बने, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बने। आपने 2015 में टीना डॉबी को भी सुना होगा। टीना डॉबी जो आईएएस टॉपर रही, शी वॉज वेरी मच क्लियर अबाउट हर गोल कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बनना है, और उन्होंने भी आर्ट्स लिया और आर्ट्स को अडॉप्ट करके फिर आगे बढ़ी और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी जो है आईएएस बनी और टॉपर रही। सबसे बड़ी बात यह, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में कि अभी से आपको तय करना चाहिए कि आपको किस ओर जाना है, आपको अपने करियर को किस ओर लेकर के जाना है, आप क्या बनना चाहते हैं। और अगर आप सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहते हैं, कंपटीशन फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजें अगर हो सके तो आपको क्लासेस अभी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फाइनल ईयर में प्रीवियस में हैं तो ये सबसे गोल्डन पीरियड है आपका, जिस दौरान आप क्लासेस ज्वाइन करके आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी आपके ऊपर कंपटीशन का बोझ नहीं होगा, आप सीखने के दृष्टिकोण से बैठेंगे। और जब आप सीखने के दृष्टिकोण से बैठेंगे, और जब, क्योंकि आपको पता होगा कि सीखने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, जब एक बार आप सीख जाते हैं तो उसको डिलीवर करने में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आप प्रीवियस और फाइनल ईयर में हैं तो आपको अभी सीखने पर जोर देना चाहिए, आपको क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। दूसरा, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, न्यूज़पेपर्स को पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए। डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंपटीशन पर आते हैं, जिसको अपन करंट इवेंट्स बोलते हैं, समसामयिकी घटनाओं पर आधारित प्रश्न। और अगर आप करंट इवेंट से परिचित हैं तो आप एक बोनाफाइड सिटीजन भी कहलाएंगे, जागरूक नागरिक भी कहलाएंगे। किसी से आप मिलेंगे और अगर आप तुरंत आंसर देते हैं तो आपको भी फील होगा कि हाँ नहीं, मैं तो कुछ हूं, मुझे कुछ पता है। तो कुल मिलाकर के आपको करंट इवेंट पर ध्यान देना चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए अभी के दौरान। इसके बाद अगर आप सही, क्योंकि अगर आप प्रीवियस फाइनल ईयर में हैं तो आपके लिए यही सबसे बेहतर समय है कि आप क्लासेस ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर आप लेट हो जाएंगे। एक जमाना था बेटा जब हमारे देश में कहा जाता था कि समय के साथ चलो अगर सफल होना है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो समय के साथ चलो। आज जमाना बदल गया है। आज अगर आपको सफल होना चाहते हैं आप, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको जीवन में वो मिले जो आप चाहते हो, तो आपको समय से आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप समय के साथ चलेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आगे चलने वाले छोड़ देंगे। तो आपको समय से आगे चलना चाहिए, समय से आगे की सोचनी चाहिए। तो अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। न्यूज़पेपर को भी पढ़ने का एक तरीका है, कभी मौका मिला तो मैं आपको बुक भी पढ़ने का तरीका बताऊंगा। और आज तो पहले आप एक न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका जरूर सुन लें, अगर आप कंपटीशन को देखते हैं तो। न्यूज़पेपर जब आप किसी से पूछेंगे तो बड़े बड़े विद्वान आपको मिल सकते हैं और वो आपको बड़ी बड़ी बातें बता देंगे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। लेकिन मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूं जो एक अलाल स्टूडेंट भी कर सकता है ना। जिसको अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना सबको अच्छा लगता है क्या? किसको अच्छा नहीं लगता? मैक्सिमम मेजॉरिटी उसी की होगी, और वही सही लोग हैं। हाँ, वही सही लोग हैं जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता। जिनको पढ़ना अच्छा लगता है वो क्या सही लोग हैं? पढ़ते ही रहेंगे फिर तो जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता ये मेजॉरिटी लोग हैं ना, ज्यादा लोग होंगे। लेकिन एग्जाम तो सबको देना है। अच्छा, जिसको पढ़ना अच्छा भी लगता है वो भी क्या पढ़ रहा है उसको पता नहीं है, बस वो टाइम पास कर रहा है, पढ़े जा रहा है। समझ रहे हो? तो न्यूज़पेपर को पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है बेटा, सबसे अच्छा तरीका है, फर्स्ट एक न्यूज़पेपर को ऑप्ट करें कि आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम में आपके लिए सबसे अच्छा द हिंदू, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक, कंपटीशन के लिए द हिंदू सबसे बेस्ट। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोई भी एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर, नेशनल लेवल का, फर्क नहीं पड़ता, नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर पढ़िए। इसके बाद अब उसको पढ़ना कैसे है? तो पढ़ने के पहले आपके हाथ में एक कॉपी पेन होना चाहिए।
और उस कॉपी को आप 3 सेक्शन में बांट दें, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट, छत्तीसगढ़, अगर आप छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं। और उसके बाद आप पेपर को देखें, पेपर में 12-13 पन्ने होंगे, उसमें आपको केवल फ्रंट पेज को पढ़ना है। अच्छा, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होंगे जो आपको बताएंगे नहीं स्पोर्ट्स पेज पढ़ो, पेज नंबर 4 पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, ऐसा बताएंगे। लेकिन मैं आपसे केवल यही कहता हूं कि आप केवल फ्रंट पेज पढ़ें, केवल फ्रंट पेज पढ़ें, बाकी न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, मैं आपको प्रूफ भी देता हूं। एक बात बताएं, बहुत वाइटल न्यूज है, मान लीजिए इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, तो क्या ये केवल स्पोर्ट्स पेज पर होगा या फ्रंट पेज पर भी होगा? होगा ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। समझ मेरी बात को। 17 नवंबर को हमारे जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हुए, तो ये केवल राजनीति पॉलिटिकल पेज में नहीं, पेज 3 में, ये फ्रंट पेज में भी था। तो मेरा कहने का मतलब यह कि एग्जाम्स में केवल इंपॉर्टेंट इवेंट्स पूछे जाते हैं, और जितने इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, इवन ऐड भी, ऐड वगैरह भी अगर आपको देखना है ना, कोई ऐड आप देखना चाहते हैं, अगर इंपॉर्टेंट ऐड होगा ना तो फ्रंट पेज पर ही होगा। इसलिए केवल फ्रंट पेज पर है। और जो एरिया है, पूरा नहीं पढ़ना है कि एक लाइन से शुरू किया और सब पढ़ना चालू कर दी, ऐसा नहीं। 7-8 टॉपिक होते हैं। एक उसमें देखे कोई अपॉइंटमेंट या कोई रिमूवल है क्या, किसी की नियुक्ति हुई है या किसी की पदमुक्ति। जैसे 17 नवंबर को जस्टिस रंजन गोगोई जो है पद से रिटायर हुए, और ऐसे बोबड़े जो है आपका अगले मुख्य न्यायाधीश बने, भारत के बने कि नहीं बने। ये देखे कोई पदमुक्ति है, कोई नियुक्ति है क्या, अपॉइंटमेंट रिमूवल, या देखे कोई समिट हो रहा है क्या, सम्मेलन वगैरह, जैसे आप सुनते होंगे G8, G20, ये सब G7 सम्मेलन सुनते कि नहीं सुनते, ये सम्मेलन देखें। कोई स्पोर्ट्स देखे, कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के इवेंट है क्या, अपॉइंटमेंट रिमूवल हुआ, समिट्स हुए, सम्मेलन जिसको बोलते हैं। उसके बाद से आपका, आप इसमें देखें, खेल को देखें, स्पोर्ट्स को देखें। स्पोर्ट्स को देखने के बाद फिर आप इसमें जा सकते हैं और आगे आप इसमें देखें कि कोई आपका सम्मान दिया गया है क्या, कोई पुरस्कार दिया गया है क्या, रिवॉर्ड या अवार्ड, जैसे किसी को नोबेल मिला अंतर्राष्ट्रीय, किसी को ज्ञानपीठ मिला राष्ट्रीय, समझ रहे हैं बात, इन सारी चीजों को। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखें, जैसे मिशन चंद्रयान 22 जुलाई 2019 को गया था, चंद्रयान 2, तो चंद्रयान को देखें, मतलब इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट को। एनवायरमेंट को देखें, जैसे अभी आप डेली न्यूज़पेपर देख रहे होंगे तो आपको सुनाई दे रहा होगा कि सर्वाधिक वायु प्रदूषण दिल्ली में है, एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा खराब है। या अभी आपने सुना होगा 2 चीजें, वायु में सर्वाधिक प्रदूषित शहर दिल्ली, और प्रदूषण में 1 नंबर पर गुड़गांव है, हरियाणा का। इतने आपको, और एक लास्ट में इकोनॉमी के, अर्थशास्त्र, बैंक रेट बताएगा, कभी रेपो रेट बताएगा, कभी रिवर्स रेपो रेट बताएगा, कभी जीडीपी बताएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है। समझ रहे बात को। बस इतने टॉपिक होने चाहिए, और जब भी आप फ्रंट पेज पढ़े तो इन टॉपिक्स को खोजें। केवल ये पूरा लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, केवल आप इन टॉपिक को देखें, कोई अपॉइंटमेंट है क्या, कोई सम्मेलन है क्या, कोई एनवायरमेंट की बात कही गई क्या, और आप हेडिंग डालें। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं 19 नवंबर 2019, आपने डाला दैनिक भास्कर या कोई भी आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें ये आपने एक टॉपिक बनाया, नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल और छत्तीसगढ़, और उस पॉइंट को आपने नोट कर दिया। जब आप डेली पढ़ेंगे ना बेटा, तो डेली ये 8 इवेंट नहीं मिलेंगे आप, 8 में से कोई 1 या 2 मिलेगा आपको। तो डेली का 1 या 2 चीजों को याद करना बहुत आसान है और लंबे समय तक याद रह सकता है, और 30 दिन में 60 मैक्सिमम। समझ रहे हैं। और अभी से आप पढ़ेंगे, अगर इस साल आपको एग्जाम देना है तो वो आपके करंट में आ जाएगा, और अगर आपको आगे भविष्य में एग्जाम देना है तो वही आपका जीएस बन जाएगा। लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग क्लास अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक। मेरे जाने के बाद सर आपको जानकारी दे देंगे क्लासेस वगैरह की, और साथ ही साथ आप जो एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो एक जमाने में एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। आज के डेट में एनसीईआरटी की जो 6वीं से लेकर 12वीं तक की जो किताबें हैं, उन सब का सॉल्यूशन आज सारे कोचिंग सेंटर्स या जितने भी आपका बड़ी बड़ी
बुक पब्लिशिंग हाउस है, उन सारे बुक में भी आ जा रहे हैं। जैसे स्पेक्ट्रम की बुक आती है, टीएमएच की आती है, इन सब में आपको सारे कंपाइल मिल जाएंगे। तो अभी आप न्यूज़पेपर, इन ऑथेंटिक बुक्स और क्लासेस को ज्वाइन करके अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं। देखिए, इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट, थोड़ा सा बेटा पुरानी बात कर रहे हैं। अब मेंस में अगर आप पीएससी की बात करें, स्टेट पीएससी की, तो अब ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होते। हाँ, यूपीएससी में अगर आप जाना चाहते हैं तो यूपीएससी में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है और यह ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ड होना चाहिए कि स्कोरिंग किस में ज्यादा है और एफर्ट किस में कम रहेगा, ना कि इस पर बेस्ड होना चाहिए कि मैं मैथमेटिक्स वाला हूं तो मैं मैथ्स ले लूं। समझ रहे हैं? तो इंपॉर्टेंट यहां पर यह, जब आप सब्जेक्ट लेने जाते हैं तो वहां पर आपको इजी सब्जेक्ट ले जिसमें सिलेबस कम हो और जिसमें स्कोरिंग बहुत अच्छी आती हो। जैसे अगर आप उधर जाते हैं दिल्ली तैयारी करने के लिए तो हिंदी लिटरेचर, पाली, फिलॉसफी, समझ रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट जो होंगे बहुत ही अच्छे रहते हैं। इसके बाद थोड़े से अपर लेवल पर जाएंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट जो है ये भी अच्छे होंगे। समझे मेरी बात को? इस तरीके से सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए, ना कि भावनाओं में बह करके कि नहीं मैं तो मैथ्स वाला हूं, मैं मैथ्स से लूंगा। ठीक, तो इसमें आप भावनाओं में बहते चले जाएंगे और किनारा नहीं मिलेगा। कुछ और हो गया? मेरी बातें आप लोगों के लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करनी चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा, मेरा आने का उद्देश्य केवल इतना था कि लाइफ को लेकर के आप गंभीर हो जाएं और आप कोशिश करें कि अभी से जो हम जो बनना चाहते हैं, अभी से हम उस पर 100%। और भविष्य को मत सोचें बहुत ज्यादा, मतलब कि क्या होगा, इसका नेगेटिविटी कभी नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी को सोचना चाहिए, है ना। वो कहते हैं ना कि वो पतंगों को पता होता है कि उन्हें एक दिन कचरे में जाना होता है, लेकिन कचरे में जाने के पहले उन्हें आसमान भी छूकर दिखाना होता है। तो कुल मिलाकर के लाइफ का एंड मत सोचे कि यार हमको तो पैदा हुए हैं तो एक दिन चले ही जाना है, लेकिन जाने के पहले आसमान छू करके हम दिखा करके जाएं, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, थैंक यू।